Hi everyone. Hi, I'm Sakshi and I'm your host for today. So आज हम क्या करने वाले हैं? Today I'll just share my learnings on the new wage code, the wage code 2019. So मैंने ये कोड समझा पढ़ा और सोचा कि आपके साथ भी इस कुछ शेयर करा जाए. हो सकता है आपको भी कुछ आसानी कर दे इस कोड को समझने में. To understand what is the changes, what are the implications of this new code. So ये कोड क्या है? There were already existing four labor laws: Payment of Wage Act, Minimum Wage Act, Payment of Bonus Act, Equal Remuneration Act. What legislature did is that they have combined all these acts and formed a uniform code. अब ऐसा करने का legislature का क्या objective हो सकता है? एक objective तो ये हो सकता है कि ज्यादा complex कर दे या फिर complexity को consolidate करके इन चारों act को थोड़ा सा simplify कर दे. I know you all have correctly understand the objective. तो legislature का objective एक objective और सबसे main objective है to have a uniform code. पहले क्या होता था कि each and every act उनमें कुछ अलग अलग चीजें especially related to the definitions. कहीं पर employer की definition कुछ होगी, कहीं पर establishment की definition कुछ होगी. तो अब legislature ने सोचा कि सबको combine कर एक ही जगह हम डाल दें ताकि हमें बस इसी कोड के अंदर सारी डेफिनेशंस को देखना पड़े और उसके हिसाब से हम इसको समझ लें और अप्लाई कर लें. So one objective is to simplify these regulations so that the industry, the trade on which these all these regulations are applicable, it becomes easy for them to apply this, to understand this. दूसरा objective है to increase the area to on whom this code will be applicable. चाहे वो अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे तो हम समझेंगे कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन को इंक्रीज कर दिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन इतनी बड़ी हो गई है. They have also this is applicable on unorganized and organized both sectors. So area बढ़ा दिया गया है. They have tried to increase the ambit ताकि वो ambit बढ़ जाए और मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा. एक और चीज जो लेजिस्लेचर ने सोची थी इसके साथ कि वो एक मिनिमम वेज सेट कर देंगे. We all know that this is a matter of concurrent list. Therefore, state and central both have the authority. But what central thought this time that they'll be fixing a floor wage, and the state can fix their wages. But yes, that has to be in conformity with the floor wage. So they cannot fix any wage lower than that. So इस ऑब्जेक्टिव के साथ लेजिस्लेचर ने ये एक यूनिफॉर्म कोड बना दिया. तो अब हम पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब ये समझना जरूरी क्यों है? ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वर्ड्स बार बार इस कोड के अंदर यूज होंगे. तो अगर हम इसका मतलब समझ लेंगे तो आगे पूरा कोड समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. So let's start first with what is an establishment. भाई हम इसमें कवर भी हो रहे हैं कि हमें इस कोड को क्या हम एक एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में भी कवर हो रहे हैं, तभी तो हम समझेंगे कि हमें इस कोड में से क्या क्या कंप्लाई करना है. So what this code says, any place, कोई भी जगह जहां पर ये चीजें आप कर रहे हैं, where one or more of the following is carried on, that is industry, trade, business, मैन्युफैक्चर एंड ऑक्यूपेशन. इसका मतलब है आपका एक सीए का ऑफिस है, सीएस का ऑफिस है, आपका एक लॉयर का ऑफिस है, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग में है, आपकी कोई कंपनी है, आप कोई इंडस्ट्री है, आप सब इसमें कवर्ड है. और अगर कोई आप गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो भी आप इसमें कवर्ड है. मतलब कुल मिलाकर हर सब कुछ इस एस्टैब्लिशमेंट में आपको कवर कर दिया है. So they have actually designed the definition in such a manner that everyone, whosoever is doing whatever, they will be covered in the definition of establishment. अब दूसरी definition है employer की. अब हमें पता तो हो कि हमारा employer कौन होगा. यहाँ पर employer की definition what it says? It says employer means a person who employs one or more employee directly or through any person
in his own establishment or some other establishment. मतलब अगर कोई बंदा, आप किसी बंदे को रखने की उसके पास वो पावर है, so he is an employer. So there is also some list of the establishment. For example, कोई central government या state government में, so in that case head of the department will be the employer. If there is a there is a factory, so in factory the occupier or the manager can be termed as an employer. So now what is a new thing which is included? They have also covered contractor. Now contractor is also an employer. और एक और नई चीज जो ये कोड लेकर आया है, that in case the employer dies, so in that case the legal representative of the deceased employer will be the employer. पहले ये चीज सिर्फ फैक्ट्री एक्ट में थी कि अगर ऑक्यूपायर की डेथ होगी तो उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही विल बी एन एम्प्लॉयर. पर अब एक यूनिफॉर्म इस कोड के अंदर हर इन ऑल दीज चैप्टर्स, जो भी इसमें चैप्टर्स हैं, सबके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है कि जो भी एम्प्लॉयर है अगर उसकी डेथ हो जाती है, then in that particular case his job will be automatically transferred to his legal representative. Now the second definition is of an employee. So what do we mean by employee? Employee means any person who has been employed in an establishment for doing skilled, semi-skilled, unskilled, operational, supervisory, managerial, administrative, technical, clerical work. तो मतलब कोई भी काम कर रहे हैं सब एम्प्लॉय में कवर कर दिया गया है. Even if you are doing the work of managerial, administrative, supervisory, anything, आप एक एम्प्लॉय हैं. अब क्या इसमें से किसी को निकाला भी गया है? हाँ, एक तो हमने इसमें से अप्रेंटिस एम्प्लॉय में इंक्लूड नहीं होता. अब भाई अप्रेंटिस को एम्प्लॉय में क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट एक्ट है और वो एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल है. दूसरे, कोई भी बंदे जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में काम करते हैं वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे दो चीजें, एक तो सुपरवाइजरी और मैनेजरियल रोल. अब हमें ये क्यों ध्यान रखना है ये अभी पता लग जाएगा. अब हम देखेंगे वर्कर की डेफिनेशन. Worker की definition is almost similar. Now, one thing which is excluded here is the managerial work and the supervisory work. That means any person, कोई भी बंदा अगर एक managerial या supervisory work कर रहा है तो वो worker नहीं होगा. वो कौन होगा? वो employee होगा. That means all employees are workers, but all workers are not employees. और अब कौन कौन लोग वर्कर नहीं होंगे वो भी इसमें बताया गया है. Does not include the following: whoever is working in Air Force, Army, Navy. Apprentice भी इससे बाहर है, वही सेम रीजन क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट एक्ट है. अब जिसकी भी वेजेस 15,000 से कम है वो वर्कर है, और जिसकी भी वेजेस 15,000 से ज्यादा हो जाएंगी, whose wages will exceed 15,000, वो एक एम्प्लॉय बन जाएगा. सो बेसिकली एम्प्लॉय, अब वर्कर की डेफिनेशन जो है उसका इतना कोई खास सिग्निफिकेंस रह नहीं गया है. इज ऑल वर्कर्स आर एम्प्लॉय, बट ऑल एम्प्लॉयज आर वर्कर, बट ऑल वर्कर्स आर नॉट एम्प्लॉय. 15,000 से ऊपर आते ही आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएंगे. उससे कम है तो आप वर्कर की डेफिनेशन में रहेंगे अगर आप मैनेजरियल या सुपरवाइजरी वर्क नहीं कर रहे हैं. अब हम एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेजेस की, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी. अब हम देखते हैं वेजेस क्या होती है. वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन, वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और अदरवाइज. मतलब अदरवाइज में आ जाएगा इन काइंड. तो मतलब हम सैलरी, अलाउंस और इन काइंड कुछ दे रहे हैं, हम उन सबको टर्म करके वेजेस बोल देते हैं. अब वेजेस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो अब आप ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है. अब वेजेस, बेसिक पे, what all we include in wages is the basic pay plus dearance allowance and the retaining allowance. अब retaining allowance सारी कंपनीज में नहीं होता,
किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। तो अगर हम बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस को ऐड कर देंगे तो वो हमारी वेजेस निकल जाएंगी। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी भी एक लिस्ट दी गई है which include 9 items which actually tells you what will not be included in wages. क्या क्या चीजें हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी हमने देखा कि हम वेजेस में क्या इंक्लूड करेंगे, डीए, रिटेनिंग अलाउंस और द बेसिक पे। अब हम वेजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे उसकी एक लंबी लिस्ट इस कोड में दी गई है इन सेक्शन 2। कोई भी बोनस, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन or any annuity, house rent allowance, I mean HRA, contribution paid by the employer to any PF or pension fund, any conveyance allowance, any overtime allowance, any commission payable, remuneration payable under any reward or settlement, gratuity payable on the termination of employment, any retrenchment, compensation or other retirement benefits. So एक नौ आइटम्स हमने इसमें इंक्लूड करे। अब ये तो थी डेफिनेशन। अब इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, अब आ गया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये डेफिनेशन आगे क्या कहती है, ये डेफिनेशन इसमें आगे कहती है if the payment made by the employer except the retirement benefits and amount payable on retirement, मतलब एक हटा दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी जो हम पे करते हैं उसको छोड़ के जो वो लिस्ट में इतनी लंबी लिस्ट दी गई है 8 और चीजों की, बोनस, कन्वेंस अलाउंस, तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, इन सारे जो हम आइटम्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, द अदर कंपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पे, डी एंड रिटेनिंग अलाउंस, अगर इनको ऐड करके इट एक्सीड 50% ऑफ द रेम्युनरेशन, then that amount will be termed as deemed remuneration. मतलब जो आपको अदर कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं, जो एक लिस्ट दे रखी है which is not included in wages, अगर हम उन सबको ऐड करें और उसको ऐड करके वो हमारे जो बेसिक पे है, the basic pay plus the D or retaining allowance, that is the remuneration, उसको 50% ज्यादा एक्सीड कर रही है, so the amount which is exceeding, वो अमाउंट जो है हमारी रेम्युनरेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मिस्टर ए है, उनकी बेसिक पे जो है वो 10,000 है, उनका जो डीए है वो 5,000 है, तो उनकी वेजेस कितनी बनी 15,000। अब इन 15,000 के अलावा वो कुछ और कंपोनेंट्स भी लेते हैं जैसे कि बोनस, कन्वेंस अलाउंस, कमीशन, एजुकेशन अलाउंस, जिनको अगर हम ऐड करें सो वी गेट अ फिगर ऑफ 9,000। सो अब पहले हमने देखा कि हमारी रेम्युनरेशन कितनी बन रही थी 15,000। अब 15,000 का 50% क्या होगा 7,500, वेरी करेक्टली सेड। अब हमें जो सारे अदर कंपोनेंट्स हैं उसको मिला के जो फिगर मिली वो मिली 9,000 की। मतलब अगर हम 9,000 में से 7,500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास लगभग हमने 2,500 हमने एक्स्ट्रा हमें बन रहा है, राइट? That means that amounts to almost 60% of 15,000, I guess. So ये बन गया। अब ये जो 2,500 है, ये हमारा जो निकला है, ये हमारी रेम्युनरेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब जो पहले हम 15,000 रुपए अर्न कर रहे थे उसके अंदर ये 2,500 भी ऐड हो जाएगा और जो हमारा टोटल अमाउंट अब आएगा that will come around 17,500. So हमारी अब वेजेस जो होंगी वो 17,500 होंगी। अच्छा ठीक है, अब हम सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है और अब पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक तो हमारी टेक होम सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। भाई ऐसा क्यों हो जाएगा? टेक होम सैलरी क्यों कम हो जाएगी? अभी तो हम ऐड कर रहे थे तो थोड़ा सी हमने बस थोड़ा सा यहाँ से निकाल कर बस वहां डाल दिया, पैसे तो मिल ही रहे हैं। हमारी टेक होम सैलरी कैसे रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन जो हमारी वेजेस पे काउंट होता है वो अब ज्यादा हो जाएगा। इट इज 12% ऑफ द वेजेस। दैट इज जैसे ही हमारी बेसिक पे बढ़ गई तो वहां पे हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया और इससे हमारा इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारी टेक होम सैलरी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी।
और दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. वो कैसे बढ़ जाएगी? So we'll be making a separate video on this, but so to to give a basic understanding, I'm explaining this concept also here. तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी भाई? जब हमारी बेसिक पे बढ़ जाएगी तो उस पे जो हम टैक्स कैलकुलेट हमारा बेसिक पे होता है तो वो भी तो बढ़ जाएगा. दैट मीन्स हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी और हमारी टेक होम सैलरी भी कम हो जाएगी. मतलब पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा हमारा. एग्जैक्टली यही दिख रहा है और यही हो रहा है. अब ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर ली. Now we'll be discussing chapter wise chapter. So we'll discuss first the Equal Remuneration Act. That is one of the chapter in this. अब Equal Remuneration के सारी चीजें जो है, it has been retained as it is. There is not much change. Now one thing which is being changed here is, as the word suggests, equal remuneration. That means there should be no discrimination, or everyone should get the equal remuneration. Whosoever is performing the work of same and similar nature. सही बात है. तो पहले जो वर्ड वहां यूज था, that was male or female. Now that word has been changed to gender. इसका मतलब कि हमने अब ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है. तो मतलब कोई भी बंदा अगर सेम या सिमिलर नेचर का काम कर रहा है तो हम on the ground of gender will not discriminate and we have to give the same remuneration. अब यहाँ मेरा छोटा सा कंसर्न है, अपॉइंट कर लिया, रख लिया, उसके बाद तो हम सिमिलर वेज दे रहे हैं. सही बात है, पर क्या इसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए था कि जब वो अपॉइंट कर रहे हैं तब भी हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपॉइंट करने के टाइम भी लोग कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं. So I think that should also be addressed in the rules. Let's see whether it will be addressed. अभी तक जो ड्राफ्ट रूल्स है उसमें तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, but let's see. उसके अलावा इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं है. Now coming to the second thing. Now the second is the code in the minimum wage act. Now this is a new second chapter which talks about the minimum wage act. So in the minimum wage act also everything has been retained as it is, but what is the major change in this is which is there in addressed in section 5 of the code, that no employer shall pay to any employee less than the minimum rate of wages that has been notified by the appropriate government. Now appropriate government means central or state. तो जैसे कि शुरुआत में I was discussing with you that although that the central will decide a floor wage, and on the below that no state can fix the minimum wage. So while reading the draft rule which is there, they're not yet notified, but what written in the draft rule which we have right now, so there is a criteria that has been set by the government there that how they will be deciding the wage. क्योंकि जो वो minimum floor wage में decide करेंगे, so that should be it should be logically decided. It should be such that yes, state think okay, हाँ इससे कम हम नहीं करेंगे. So what are those factors on which, what are those criteria? So I'll just discuss that in brief. So there are two things which will decide, how the minimum wage will be calculated. So first thing is that the government thought that they will be dividing the geographical area into 3 categories. So the first will be the metropolitan area, in which will be, the population of 40 lakhs or more. That area will be covered. Any area, having the population of 40 lakhs or more, so that will be covered in the metropolitan area. Now the second will be the non-metropolitan area. So any the population have between 10 to 40 lakhs, so that area will be non-metropolitan area. And the third will be the rural area. So all the other areas, having the population of less than 10 lakhs will be the rural area. And the second thing what they will do is that they will divide all the worker employees into 4 categories: unskilled, semi-skilled, skilled, and highly skilled. So after doing this, this work, they'll be deciding the wages, that how the wages should be fixed for each area. And the things they will be keep into mind with. Basically it is, the cost of living index. So वहाँ का rent कितना होगा, अगर 3 adults हैं तो कितना एक household के अंदर consume कर सकते हैं, उनका कितना कैलोरी इंटेक हो सकता है, कितना एक्सपेंडिचर उनका होगा इलेक्ट्रिसिटी पे, फ्यूल पे,
मिसलेनियस आइटम्स पे, एजुकेशन पे, मेडिकल रिक्वायरमेंट पे, और इन सबको देखते हुए दे विल बी डिसाइडिंग व्हाट इज द मिनिमम वेज. That is something which is the main in this. Apart from that, minimum wage जो है, बाकी everything is everything else is being retained. The main thing here is to fix the minimum wage, which is yet to come. ये चीज अभी भी होनी है कि minimum wage क्या होगी, पर किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, क्या उनके पास क्या क्या लॉजिकली वो कैसे रिड्यूस करेंगे कि किस एरिया की क्या वेजेस होनी चाहिए. So that I have told you in. So that was the thing that to be known. Apart from that, इसमें और कुछ नहीं है. Now coming to the Payment of Wages Act. In this act also largely everything is retained. Like first thing what we see with the word is payment of wages. अब हमें wages को पे करना है, तो हम इसमें different wage periods के accordingly हम पहले भी wage देते थे, अभी भी उसी तरह wage देंगे. For example, अगर डेली बेसिस पे हम वेज दे रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट वील गिव द वेज. वीकली पे दे रहे हैं तो हम एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्किंग डे वील बी गिविंग द वेज. फोरनाइटली है तो एंड ऑफ 2 days वील बी गिविंग द वेज. अब यहाँ पर जो दो चीजों में जो डिफरेंस आया है, जो देखने वाली बात यहाँ पर है, सो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है कि जो मंथली बेसिस पे हम पेमेंट देते हैं, तो पहले वो जो डेज थे that was being varied depending upon the number of employees. So now that thing has been removed. और अगर आप monthly to monthly आपको पेमेंट होती है, so the 7th day of the succeeding month आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए. मतलब कि जुलाई का अगर मंथ आपने काम करा है तो 7 अगस्त को आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए. So 7th day of the succeeding month. अब वो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से जो डेज 2 days हमें दिए गए थे, 2 dates थी, वो चीज अब इसमें हटा दी गई. और एक और चीज, तो देयर इज आल्सो अ मिसनॉमर व्हिच इज गोइंग दीस डेज इज कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिमूव कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, तो यहाँ लिखा है दैट यू हैव टू क्लियर ऑल द ड्यूज विद इन 2 working days. तो यहाँ पर सेक्शन जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको जो वेजेस क्लियर करनी है that is within 2 working days. मतलब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है, फॉर एग्जांपल 15th ऑफ द मंथ बंद हो गई है, हम इस जुलाई में है और 15 जुलाई को आपने निकाल दिया, तो वो जो 15 दिन की सपोज वेजेस ड्यू है, सिर्फ वो 2 दिन वर्किंग विदिन 2 working days, you just have to clear that. नॉट कि आपको जो बाकी रिटायरमेंट अगर रिटायर हो गया सब कुछ आपको बेनिफिट्स देने हैं, कुछ पीएफ देना है, तो वो सब चीजें विद इन 2 working days नहीं देनी है. सो दैट्स अ मिसनॉमर व्हिच इज गोइंग. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू क्लियर द वेजेस व्हिच आर ड्यू विद इन 2 working days. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर. एंड द मंथली वेज थिंग, सो देयर इज अ चेंज इन दैट. उसके बाद मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पहले 9 थे, नाउ इट इज 8 working hours per day. And also there should be an interval which shall not exceed 1 hour. So there should be interval in between. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी रख सकता है. It depends upon the organization goal. जैसे organization ने अपना structure बनाया है, बीच में 1 घंटे का गैप 2 बार देना है, 1 बार देना है, so you can give that. That's not a problem. अब इसके अंदर भी जो बड़ी important चीज देखने वाली है, that is deduction from wages. अब वेजेस तो मिल गई, अब क्या हम उसमें से कुछ डिडक्ट कर सकते हैं? हाँ, डिडक्ट कर सकते हैं. और कितना डिडक्ट कर सकते हैं? We'll just see that. So there are cases in this which talk about, there are lists, sorry, not cases, there is a list which is given there, and there are 12 to 13 items included in this which can be deducted from the wages. मतलब आप जो वेज दे रहे हैं उसपे से आप इनमें से कुछ डिडक्ट कर सकते हैं. जैसे कि कोई फाइन इम्पोज कर दिया आपने, तो वो हम डिडक्ट कर सकते हैं. आप कोई बंदा वॉलंटरली ड्यूटी से नहीं आया, कोई रीजन नहीं है, बस नहीं आया, तो उसके अगर आपने कुछ वेजेस डिडक्ट करनी है तो वो हम कर सकते हैं. तो कोड के अंदर एक 12-13 आइटम दे रखे हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हैं. और इसके अंदर कुछ डीम डिडक्शंस भी है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई एम्प्लॉय ने कोई पेमेंट दी एम्प्लॉयर को या उसके एजेंट को, so that is termed here as deemed deduction. मतलब एक तो उन्होंने लिस्ट दे दी कि ये चीजें आप डिडक्ट कर सकते हो, अगर आपने डिडक्ट करी तो वो डिडक्शन है.
और अगर पहले कभी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को या उसके एजेंट को कोई पैसा दे रखा है तो उन्होंने उसको भी डिडक्शन कह दिया, दैट इज डीम डिडक्शन, डीम टू बी डिडक्शन। ठीक है। अब जैसे कि कभी कभी हमें कोई लॉस हो जाता है वेजेस, जैसे कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, कोई रीजन नहीं है पर वो काम नहीं कर रहा। कभी कभी हम किसी की, जैसे हम किसी का प्रमोशन रोक लेते हैं, हम किसी का इंक्रीमेंट रोक लेते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं। तो अगर इन सारे केसेस के अंदर देयर इज एनी लॉस ऑफ वेजेस टू एन एम्प्लॉय बट मैनेजमेंट हैज अ गुड एंड सफिशिएंट रीजन कि ये काम ढंग से नहीं कर रहा इसलिए प्रमोशन नहीं मिलनी तो चाहिए थी, but we have a sufficient reason, अगर ऐसा कुछ है उनके पास, they have a sufficient reason to deduct the wages, तो in that particular case that will not be deemed deduction। मतलब अगर आपको चीज डिडक्ट कर रहे हैं आप कर सकते हो अगर कोई आपके पास एक sufficient reason है। तो ये तो बेसिक चीज थी जो पहले भी थी, पर अब इसमें नया क्या है? Now the new thing in this is that the amount of deduction, जिसमें amount of deduction है, अगर वो 50% of the total wage से ज्यादा हो जाता है तो तब आप उससे ज्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। क्या मतलब है? आपकी पर्सन who's getting a wages 1000, ओके, और ये सारा डिडक्शन वगैरह करके एम्प्लॉयर ने देखा जी आपकी डिडक्शन बन रही है 6000, ना सारा तुम ही ले जाओगे तो बेचारा जिसको जो वेज मिल रहा है उसको मिलेगा क्या? तो सरकार ने कैप लगा दी, उन्होंने बोला 50% डिडक्ट कर लो, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 1000 रुपए सैलरी है और 500 रुपए उन्होंने, तो 1000 का 50% हो 500 रुपए, तो उन्होंने बोला जी ये तो 500 रुपए जो है बन रहा है, 600 रुपए बन रहा है, सॉरी आई सेड 6000, it was to be 600 and calculated in mind 10,000, I'm really sorry for that। So अगर आपकी वेजेस 1000 रुपए है और आप डिडक्ट कर रहे हो 600 रुपए, तो आप नहीं कर सकते, आप कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 500, दैट इज 50% ऑफ द वेजेस। ठीक है, तो अब बाकी का 100 रुपए क्या भूल जाए? तो अब जो रूल्स आए हैं, रूल्स में ये दे रखा है कि आप वो 100 रुपए को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए और अगले साल से डिडक्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ वेजेस तो जानी भी चाहिए ना, ताकि वो अपना घर चला सके, अपने एक्सपेंसेस बियर कर सके। सो दैट्स व्हाई दिस कैप हैज बीन सेट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन बाय द गवर्नमेंट। सो उन्होंने कैप लगा दी, 50% अभी कर लो, बाकी का जो है वो अगले को कर लो। So these are few of the changes and impact and implications. I have not discussed payment of bonus act in this. For that, we'll be making a separate video. We'll be discussing a bit about the bonus act and their calculation, and also we'll be making a separate videos on how the take-home salary and the tax liability, which will be, how the take-home salary will be reduced or the tax liability will be increased. So we'll be making a separate video on that. So thank you so much everyone for watching this video. I hope you liked it and I help you in learning the new code. And so please subscribe to our channel, like the channel, share it. Thank you so much. And soon we'll be coming with the next video. Thank you so much.